Welcome to my show, Anita. Thank you. Thank you for inviting me. Yeah, so I have started this question answer series, Simplified Life with Sangeeta, and I'm feeling very great that you are here with me. Let's start our session. Whatever question in your mind, you can ask me. Yeah. So, firstly, I would like to introduce myself. That I am an art coach, artpreneur, but I have equal passion for life coaching. So I'm aspiring life coach as well. Wow. So Anita is a aspiring life coach. So I'm really feeling now much more, glad to have you in my show. Welcome again. Yeah, Miss, that's the connect for us. How I found you through Instagram, because I was also looking for the similar content, and I noticed you. Great to know. Great. Okay. Here I'll ask you whatever that my curiosities are. So I will ask you, and just give me whatever that comes to your mind. Sure. What inspired you to become a life coach after being a housewife for 24 years? That's a big time. Yeah, it's a big time, Anita. And since 3-4 years, I was searching for some meaningful work, because my kids were grown up, and I was always thinking I should do something. And somewhere that identity crisis, you can say, that was back of in my mind. And purpose also, always I was thinking there should be some reason why I'm here. I should do something meaningful, and I was searching in that area particular. And one day I found my mentor's advertisement, Pooja Punit, and I just entered in her room, and I have taken one course, but it was all for self development. I didn't aware with this concept, actually, what is life coaching and everything. When I took that course, it was all for my self development. And somewhere I felt that I will get some clarity from this course, and I purchased that course. I like that course very much. After that, I have attended one more webinar of Pooja Punit. That's where I decided maybe she can help me to find out my why and my purpose. So let me join her next course. I joined that course, and frankly speaking, I joined that course. Till that moment, I didn't know what is my why and what I want to do. But I have that clear hope that I will find my why. This mentor, she will definitely help me. And after 2-3 sessions, I decided, okay, this life coaching is maybe for me, because I was too much resonated with this concept of helping women and everything. And Pooja's courses helped me a lot. I thought if she can help me, so there are hundreds, thousands of women. They are finding their why. They have a lot of question in their life. They are struggling with their mind, with a lot of doubts, fears, and unclarity, uncertainty, everything. So I thought definitely I can help. Before that, I was helping women from another medium. I was a Rotarian since a long time. So there I have done so many women empowerment projects and helping youth kind of projects. Indirectly, I was helping women, but I was not aware with this concept that life coaching or something. So I thought, let me, systematically do this thing with my own learnings. And I have started official training and everything. And I have officially entered in this life coaching world. And with that single purpose, if Pooja can help me, I can also help others women. Yeah, definitely Pooja is an inspiration, and she is like giving a lot of us, people like us, housewife or women who want to become independent, financially independent, plus to handle that mental thing also at home. Yes. So our ultimate purpose is to get financial freedom, but before that we need to work on our mental peace and emotional maturity. So that is my whole purpose behind this life coaching. Mainly I'm making women emotionally strong and removing their limiting beliefs, that you can do anything. If I can do after 24 years, anyone can do. Simple. It is very simple. Yeah, and even you are saying that you have studied from Gujarati medium, and to look at your confidence, I'm like,
simply, it's mind blowing. Yeah, so my complete schooling was in Gujarati medium. College was in English medium, but my subject was physics and maths. Nothing to do with that, language or anything. So I didn't get any kind of exposure to improve my English. But after coming in this field, I have worked on my English, and maybe I'm managing to speak. Yeah, important is to convey our feelings. If we are able to do that, we are sorted. Here I want to mention that is biggest barrier in hundreds of people, that I don't know proper English, but frankly speaking, no need to know. If you convey your message, so people will connect with you. So that is the biggest message I want to give. And yes, it's a time to learn better English, because if we want to reach reach many people internationally, globally, we have to learn English. It is important. So I'm learning also. You are learning by investing in many courses, I know that. So how do you manage the finances for that? Yeah, it's a biggest question, but I'm very much thankful of my husband. He never said no. Yeah, he asked, because for him it is, everything is like, the biggest number and amount, how much we are spending in this industry. So both of we were not at all aware with all these things and all this concept, and we can't imagine कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख का भी कोई कोर्स हो सकता है. तो बट दैट मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग डिजायर हो गया था कि नहीं, अभी तो ये फील्ड में मुझे आगे बढ़ना ही है, करना ही है, वॉट एवर इट टेक्स, आई वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड. बट सब सीखना तो जरूरी था. अपने पास कुछ बेसिक स्किल्स तो रहती है, बट उसको सिस्टमेटिक तरीके से सीखना, किस तरह से लोगों को सिखाना, ये सब तो बहुत जरूरी है सीखना. तो मैंने 2-3 कोर्स लिए. तब तक तो मैंने हस्बैंड से मैंने पैसे मांग लिए, बट वो समवेयर ना हमें भी हेजिटेशन होता है कि अभी और कितना, मतलब अभी हमने 30,000 का कोर्स लिया, 1 लाख का कोर्स ले लिया, 2 लाख का कोर्स लिया, देन अगेन इफ यू वांट 2 lakhs 3 lakhs, तो फिर ऐसा होता है कि अभी बहुत हो रहा है, कैसे मांगे, और कुछ कमा तो नहीं रहे थे इनिशियल 4-5 months, तो बस पैसे डाले. वेरी इंपॉर्टेंट. वो जब एक क्वेश्चन मार्क आता है कि इनकम नहीं है, इन्वेस्टमेंट इतना हो रहा है, बट समवेयर इट वाज इन माय माइंड, एंड बिकॉज ऑफ माय मेंटर्स इंस्पिरेशन, दैट अगर मैं लगी रहूंगी कंसिस्टेंटली तो आई विल अर्न मनी. वो था मेरे दिमाग में, और वो बिकॉज ऑफ देयर इंस्पिरेशन और सारे मोटिवेशन से वो मुझे इतना दिमाग में हो गया था कि हाँ, लगे रहना पड़ेगा तो रिजल्ट तो जरूर मिलेगा. तो उसके लिए पैसे भी इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि सब चीजें ढंग से सीखनी ही पड़ेगी. एट सर्टेन लेवल आई डिसाइडेड टू टेक अ लोन, कि अभी मैं लोन लेके करूंगी. अभी लोन भी कैसे मिलेगा, मैं तो होम करूंगा, मतलब वो स्टार्टअप लोन एंड सब मिलता है, बट फिर वो भी मुझे सब कॉम्प्लिकेटेड लगा, क्योंकि ये सब चीजें समझ में आती नहीं थी पहले. सिंपली कोविड का टाइम था, मैंने देखा कि मेरे जो ऑर्नामेंट्स है ऐसे ही लॉकर में पड़े हैं, तो मैं उसको यूज कर लूं, कहीं तो काम लगेगी, तो मैंने गोल्ड लोन लिया. सो इट वॉज वेरी इजी. मेरे हस्बैंड ने बहुत ना बोला कि तुम्हें कितना चाहिए, मतलब लोन क्यों रहे. मैं कहा ऐसे ही ऑर्नामेंट्स पड़े, और मुझे हर बार वो हेजिटेशन होता है, आप दे रहे हो पर मुझसे नहीं मांगा जा रहा. मुझे चाहिए कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हो और मुझे पता हो कि मुझे किस तरह से खर्च करना है, सो आई कैन मेंटेन माई अकाउंट, और आई कैन अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन डिसाइड व्हाट शुड आई डू, एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ में आएगी. तो समवेयर वो सीखे थे कि टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैंने बोला कि प्लीज लेट मी टू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ एंड माई ग्रोथ. सो समहाउ बहुत कन्विंस करना पड़ा उनको एक्चुअली, क्योंकि वो बोले कि नहीं, ऐसा करने की क्या जरूरत है. बट आई नो वो मुझे देते थे, बट हर बार जो हेजिटेशन था, तो उसके कारण मैं शायद नहीं मांग पाती और सारे कोर्सेज नहीं कर पाती. और 2 साल में कम से कम मैंने 12 lakhs के कोर्स कर लिए. तो जिस स्पीड से मैं जाना चाहती थी ना, मैं रुकना नहीं चाहती थी. तो और उनको बोलती तो शायद वो किसी तरह मुझे दे ही देते थे, बट मुझसे मांगा नहीं जा रहा था. तो इसलिए आई टुक अ गोल्ड लोन. तो दैट वाज माय that must be like you took a lot of courage to invest ना, वो करने के लिए भी, लोन लेने के लिए भी आपने बहुत करेज दिखाया होगा. एंड विद दैट श्योरिटी कि मैं इसको वापस छुड़ा लूंगी, मैं ही छुड़ा लूंगी, और जब तक नहीं छुड़ाऊंगी तब तक नहीं पहनूंगी. ठीक है ना, कोविड ही तो चला है, मुझे कहाँ क्या पहनना है. तो इस तरह से फिर मैंने गोल्ड लोन लिया, और फिर मेरे अकाउंट में पैसे थे, तो उसको मैंने मैनेज किया, और मुझे किस तरह से क्या यूज करना है. तो मैंने फिर कोर्सेज भी किए, और साथ साथ में मेरे बिजनेस में भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करती गई, सो दैट साइड पे वो अर्निंग भी स्टार्ट हो गई, तो वो थोड़ा बैलेंस रहता है, तो अच्छा लगता है. So you were able to monetize by what time?
Mostly by April 2021. ओके ओके, हाँ, वहां से मेरी अर्निंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई, बट बाद में वन ऑन वन क्लैरिटी कॉल. हाँ, one on one, yeah, one on one. Before that, I have given so many free sessions to my friends and their friends, and so that I can, improve my skill. And how do you keep yourself motivated, especially in this technological world, जहाँ पे अच्छे लोग स्टक हो जाते हैं कि रील बनाना है या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है या फिर एड्स बनाने हैं, जैसे आपके वेबिनार के लिए आपके एड्स आते हैं. Do you manage them? I think I started to learn all this technical thing in October 2020 only. When I decided to enter in this field, August 2020, and October 2020, I started to learn how to create reel and how to edit reel. तो बहुत सारे ऐसे शॉर्ट कोर्सेज रहते हैं ना, 500 के 1000 के, तो ऐसे बहुत से कोर्सेज मैंने किया है. हाउ टू ग्रो योर इंस्टाग्राम अकाउंट, हाउ टू ग्रो योर लिंक्डइन अकाउंट, हाउ टू क्रिएट रील, हाउ टू पोस्ट रील, हाउ टू क्रिएट पोस्ट. कुछ नहीं आता था क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी मेरी डॉटर ने खोल के दिया था. नहीं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. मतलब आपने कभी टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर नहीं किया. आई थिंक आपने कंप्यूटर भी कभी यूज नहीं किया. नहीं. मतलब बच्चों की स्कूल से सब आता था ऑनलाइन, बट वो मोबाइल पे ऐप रहता था और पता था कि बस यहाँ क्लिक करो, चीजें आ जाएगी, देख लो, करा लो, हो गया. और उससे पहले तो सब ऑफलाइन चलता था, कुछ सबमिट वगैरह कुछ नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी थी और मैं हमेशा भागती थी. सी, आई वाज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, चाहती तो मैं सब कुछ कर सकती थी, बट कभी उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं समझा. और एक पहले से ही फियर था कि नहीं बाबा, ये टेक्नोलॉजी अपने बस की बात नहीं है. तो कभी, और बेटियां बड़ी हो गई थी तो दे वर एबल टू मैनेज एवरीथिंग, तो मुझे करना ही नहीं पड़ा. कभी भी नहीं. स्कूल में मेल भी करना होता था, उनको मैं बोल देती थी ऐसे ऐसे लिखना है, प्लीज मेल कर दो, बच्चे ही कर देते थे. तो आई नेवर ट्राई टू लर्न. और अब देखो, इतना एकदम इंस्पिरेशन आ गया कि कुछ भी हो मैं सीख के रहूंगी, मैं करके रहूंगी. अभी जस्ट 2 days back only when I was crewing with Success Gyan India. Wow. So my daughter told me, मम्मा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे ज्यादा टेक्नोलॉजी तुझे आएगी. That must have felt एक inner peace मिला होगा ना, वो सुन के कानों में ऐसे, हाँ क्या बोला. But I struggle a lot to learn everything. But उतना था कि ये चीजें हैं, इतनी तो सीखनी ही पड़ेगी. फिर जब ये Zoom पे जब वेबिनार वगैरह स्टार्ट किया तो अगेन दैट वाज लॉट ऑफ चैलेंजेस. बट फिर तो लिटरली मैंने अफर्मेशन बना दिया कि आई एम गुड इन टेक्नोलॉजी, आई एम एक्सेलिंग इन ऑपरेटिंग लैपटॉप. लिटरली मैंने अफर्मेशन बना दिया और लोग प्लीज शेयर दैट विद अस आल्सो. तो बट बहुत कुछ सीख लिया. नाउ आई लाइक ऑल दिस टेक्नोलॉजी, और उसके बिना चलने वाला ही नहीं है, तो आपको सीखना ही सीखना है. So it's message for everyone who is running away from technology. कोई ऑप्शन नहीं है. संगीता जी ने बोल दिया, सीख लो भाई, कैसे भी सीखो, कैसे भी सीखो, सीखना है. और सी, बाद में है आप डेलीगेट कर दो काम, किसी और को दे दो, वो सारे ऑप्शन है, बट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से चीजें काम कर रही है, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. नहीं तो मार्केट में फिर आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो सामने वाला आपको क्या बोलना चाह रहा है, क्या मतलब आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे, पूरा उन पे डिपेंडेंट हो जाएगी. तो बेटर पहले आप सीख लो, चीजें समझ लो, फिर आप किसी को हैंड ओवर कर दो, क्योंकि सब चीज तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे. एनीवे आपको हैंडल तो करना ही पड़ेगा किसी को, बट आपको एटलीस्ट समझ तो होगी कि किस तरह से चीजें काम कर, so that they can not even cheat us. Yes, that is the big thing. That is the big thing. Yeah, क्योंकि अकाउंट हैक हो जाए and then they make बहुत कुछ है. तो अभी तो मतलब मैंने तो सीखना स्टार्ट किया है. There is lot more to learn, but now I love this field, तो मैं कुछ भी सीख लूंगी. That is very very मतलब प्लस पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब ये क्वालिटी अगर आ गई ना किसी में भी, कि कुछ भी हो मैं तो सीख के रहूंगी, तो फिर उसे कोई पीछे नहीं कर, मतलब पीछे नहीं रह सकता. मतलब ये चीज की जरूरत है, आपको सीखना है तो सीख ही लो बाबा. मतलब वहां पे आपको पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है. करेक्ट. एंड हाउ डू यू मैनेज, मतलब इतना सारा टाइम आपको सीखने में जा रहा है, बिजनेस हैंडल करने में जा रहा है, सो हाउ डू यू मैनेज योर हाउस होल्ड थिंग्स, हाउस होल्ड चोर्स जो आप करते थे, बिकॉज आप हाउस वाइफ थे तो ऑब्वियसली सारा कुछ आप ही करते होंगे. तो उसको टाइम देना प्लस इसको टाइम देना, तो कैसे मैनेज करते हो?
सो दैट इज थैंक्स टू कोविड। एक्चुअली कोविड ने इनिशियल स्टेज पे हमें सिखाई दिया सब काम करना क्योंकि पहले हम हेल्पर तो रहते थे, मेड्स वगैरह रहती थी, मतलब हम खाना मैं पूरा बनाती थी क्योंकि मेरे घर में मेरे हाथ का ही खाना सबको पसंद था, तो मैं ही बनाती थी। बट एक्स्ट्रा हेल्प तो हमेशा बाहर से मिलती थी। बट कोविड आया, हमने अगर याद है तो स्पेशली इन मुंबई 6-8 महीने तक हमने किसी मतलब बिल्डिंग में मेड्स अलाउड ही नहीं थी, जबरदस्ती आपको काम करना ही था। एट वो ही पीरियड में मैंने ये फील्ड में एंट्री भी ली। तो मतलब मार्च में सब स्टार्ट हुआ और मैंने अगस्त में ये फील्ड में एंट्री ली। जुलाई में मैंने बेसिक कोर्स लिया था, अगस्त में मैंने ये फील्ड में एंट्री ली और सब सीखना भी स्टार्ट किया, सब काम भी कर रही थी। बट हो रहा था मैनेज, और मेरी बेटियां बड़ी थी तो थोड़ा बहुत वो भी हेल्प कर रही थी। बट फिर बाद में जनवरी फरवरी से बहुत वर्कलोड बढ़ गया। तब मैंने आई थिंक दिसंबर से मैंने मेड्स बुलाई वापस विद सम प्रिकॉशंस बिकॉज ऑफ कोविड एंड एवरीथिंग, और किचन भी बाद में हैंड ओवर किया मैंने। बट या वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि मैं खुद इतने साल काम करती थी, मुझे वो भी डेलीगेट करने में बहुत टाइम लगा। आपको डेलीगेट करना इज वन थिंग एंड फैमिली मेंबर्स को कन्विंस कैसे किया? जैसे आपने बोला कि मेरे ही हाथ का खाना पसंद है, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? वो तो जरूर जानना चाहूंगी। या सो यू नो पूजा ने हमें बोला था कि सीडिंग करते रहो, तो वो मैंने सीडिंग नवंबर से ही चालू कर दिया था कि देखो अभी मुझे काम बढ़ेगा तो मे बी मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किसी को रख दूंगी, मे बी मैं डिनर के लिए किसी को रख दूंगी। तो पहले भी मेरे पास थी मेड्स, बट वो क्या चॉपिंग वगैरह सब करती थी, फाइनल टचअप तो मेरा ही रहता था। एंड दिस पीपल आर लाइक यू नो कि मम्मी के हाथ की ये चीजें तो चाहिए तो बहुत इवनिंग का तो बहुत टाइम तक मैं हैंड ओवर नहीं किया, मैं ही करती थी। मॉर्निंग में समहाउ हो रहा था, बाद में मैं लंच के पहले थोड़ा बहुत चेक कर लेती थी कि हाँ चीजें सब सही तो है ना, ताकि वो लंच के टाइम पे सबको पसंद नहीं खाना और सब केओस क्रिएट हो जाए, वो सब नहीं हो जाए करके मैं जितना हो सके उतना करती थी। और कुछ समय कई बार ऐसा होता था कि चीजें बराबर से नहीं भी होती थी, बट वो लोग समझते थे कि ओके ठीक है। और मैंने बहुत क्लियर बोला था कि सी आई वॉज हियर full time available for all of you for these many years. Now I want to do something for me also. All of you have to cooperate with me. That is what I am expecting from all of you. बहुत क्लियर कम्युनिकेशन किया था मैंने मेरे हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ। तो दे ऑल्सो कन्विंस तो हो जाते हैं वो लोग, बट यू नो जब चीजें खराब होती है तो थोड़ा इधर उधर होता ही है। बट फिर बोल लेती कि देखो अभी चीजें थोड़ी बहुत तो एडजस्ट करनी ही पड़ेगी। मतलब सिंपल विथ कम्युनिकेशन आई मेड एवरीथिंग वेरी इजी। अगर हम कम्युनिकेट नहीं करते ना तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और एनीवे मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना, तो अभी भी बहुत सारी ऐसी इवनिंग होती है जहाँ पे मैं कुछ उनकी फेवरेट डिशेस वगैरह बना देती हूँ। उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, दैट इज ऑल्सो एसेट फॉर मी। तो मुझे वो देखना भी अच्छा लगता है। अब आपके लिए खाना बनाना एक मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज हो गई है। पहले आपके लिए अब कंपल्शन था। मेरी डॉटर बोलती है मम्मी अभी कुछ आइटम तो हिस्ट्री बन जाएगी अपने घर में तो मैंने कहा रेडी हो जाओ, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं कुक को सिखा दूं, बट हो सकता है कि वो हिस्ट्री बन जाए। तो यू नो दैट सीडिंग एंड कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑलवेज। और मैं काफी चीजें बहुत प्लान आउट कर लेती हूँ। मैं अपनी कुछ 2-3 इवनिंग ऐसे फ्री रखती हूँ जहाँ पे मैं खाना बनाने का टाइम निकाल सकूँ, तो वो थोड़ा प्लानिंग से ही चलती हूँ, सो दैट उनको भी उतना वो नहीं हो। और मुझे अच्छा लगता है जब वो कुछ मैं बनाती हूँ और वो खुश होते हैं, तो आई लाइक दैट। तो कुछ स्पेशल डिशेज है जो मैं अभी भी बनाती हूँ और मैं शायद हमेशा बनाऊंगी, बिकॉज आई वांट टू सी दैट हैप्पीनेस ऑन देयर फेस। लेकिन इस चीज की इम्पोर्टेंस आपको अभी समझी होगी ना, पहले उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सबकी सेम ही कहानी है। मतलब हाँ, मतलब वो लोग भी अप्रिशिएट करते थे, नहीं करते थे, तो मुझे वो कॉम्प्लीमेंट लेने की आदत नहीं थी, क्योंकि वो सेल्फ लव नहीं था। वो तो हमने अभी आके सीखा, क्योंकि वो हाँ ठीक है मतलब बनाते रोज, उसमें क्या है। तो हमारा भी कुछ ऐसा एटीट्यूड था। बट अभी उनको पता है कि मम्मा ने स्पेशल टाइम निकाला है, मेरे हस्बैंड को भी पता है कि उसने सारा ऑर्गेनाइज करके ये चीज बनाने के लिए टाइम निकाला है, तो वो थैंक यू भी बहुत स्पेशल रहता है और वो अच्छा भी फील होता होगा। हाँ, सो एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिंग, तो हो रहा है। गुड मींस आई मतलब ये आपसे रियली सीखने जैसा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड इज लाइक एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट कट्टर। खाना तो कोई नहीं बनाएगा, खाना तू ही बनाएगी, तू कुछ बिजनेस कर, कुछ भी। नो, बट फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट लंच तो आप लंच के टाइम पे तो मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं वो लंच बनाने गई ना तो मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे मेरे अपॉइंटमेंट कैंसिल करने पड़ते हैं।
या मतलब मेरा कैसे, मैं वर्किंग थी, आई वाज वर्किंग फॉर 4 years ना। अच्छा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वाओ। पर तभी भी लाइक आई यूज्ड टू कुक, मैं टिफिन बना के ले जाती थी और आके भी बनाती थी। राइट क्योंकि वो क्लियरली बोलते थे यार एक खाना तो ढंग का होना चाहिए। हिज थिंकिंग इज, आई एम अ राजस्थानी गर्ल, तो हिज थिंकिंग इज कि कुछ भी हो, हम कमाते किस लिए, खाने के लिए, तो वो तो घर वालों का हो। अब इस वाली मेंटालिटी को भी मुझे लगता है सीडिंग करके कुछ सीडिंग विल हेल्प, रियली इट इज हेल्पिंग। मैं तो, मेरा सीडिंग चालू हो जाता है 2-3 महीने पहले से, थोड़ा 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 उनको मेंटली प्रिपेयर कर देती हूँ, तो वो उनको फिर एकदम से वो झटका नहीं लगता है। और खाने का तो मुझे खुद को भी है, मुझे भी बहुत ढंग से खाना चाहिए। मैं भी ऐसा वैसा कुछ भी खा नहीं सकती, मैं भी थोड़ी हूँ उस पर्टिकुलर। बट you don't believe visualization and affirmation works here also. Oh wow. Literally मैंने, मेरे पास अच्छी कुक है, अच्छी मेड है, वो भी मेरा affirmation था, visualization था। You can't believe. उसके बिना तो चलेगा ही नहीं। मतलब ये क्योंकि आधे टाइम हमारा अगर उनसे झिकझिक होता रहेगा तो हम अपना कंसंट्रेशन कब करेंगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम लगेगा, मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था। तो लिटरली मैंने 4 महीना ये अफर्म किया है, विजुलाइज किया है। Trust me, my cook is very good. Good. Lucky you. I also start this, affirmation, seeding, everything. और उससे पहले मेरी बहुत बड़ी लिमिटिंग बिलीफ थी, जो मैं लोगों के अभी दूर कर रही हूँ। मैंने, क्योंकि इतनी सारी मेरी अपनी लिमिटिंग बिलीफ तोड़ी है। मेरा बहुत बड़ा लिमिटिंग बिलीफ था कि बाय अच्छा खाना कभी नहीं बना सकती। हाँ, क्योंकि कभी बीमार होते हैं, कभी बीच बीच में हम ट्राई करते हैं किसी 2-3 दिन ऐसे बाई को बुला के कि भाई खाना बना लो, हमें नहीं पसंद आता था। और मैं बहुत चूजी हूँ, मुझे बहुत पर्टिकुलर वैसे, मेरे हस्बैंड से ज्यादा मुझे पर्टिकुलर खाना चाहिए, ऐसा है। तो मुझे मतलब ऐसे खाना चाहिए, मेरे हिसाब से ही चाहिए, उस तरह से। तो मैंने उसको ट्रेन कर दिया, एंड टच वुड उसमें है वो कि उसने वो ट्रेन भी हो गई और अभी बना भी रही है। Like you, what is the one thing that keep you motivated in spite of the ups and downs? क्योंकि शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है। yes. इतने रिजल्ट्स हमें जल्दी नहीं मिलते हैं, हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। एक मुश्किल का तो दूसरी कुछ ना कुछ चालू होगा, बट ना आई बिलीव दोज आर अपॉर्चुनिटीज। अभी मैंने वो मुश्किल चैलेंज वर्ड यूज करना बंद कर दिया। Those are opportunities which is give me chance to grow day by day. So you have changed your story. yes. मेरी बिलीफ, मेरी स्टोरी मैंने चेंज कर दी, तो कभी मुझे वो बोर्डम फील नहीं होता है, कभी स्ट्रेस नहीं आता है। It's so good. आपने सारे लर्निंग्स को रियली अप्लाई किया है। एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, सीडिंग, चेंजिंग द स्टोरी। मतलब ये अभी तक मैंने सीखा है, अभी अप्लाई करना बाकी है। तो आई एम लाइक लर्निंग दिस फ्रॉम यू कि अप्लाई भी करना शुरू कर दो। हाँ, तो या व्हाट वाज योर क्वेश्चन? व्हाट इज द वन थिंग दैट इज कीपिंग यू मोटिवेटेड टू कीप गोइंग? या सी, सो मुझे कुछ करना था, मैं यहाँ पे आ गई, ये फील्ड में आ गई। इससे पहले भी मैंने 1-2 कुछ ट्राई की थी जहाँ पे मैं अलाइन नहीं थी, मैंने छोड़ दी थी चीजें। अभी तो यह है कि मैं लाइफ टाइम इसको नहीं छोड़ूंगी। बट जब भी मुझे कभी ऐसे डाउन फील होता है या ऐसा लगता है भाई अच्छी खासी जिंदगी जी रही थी, सब कुछ था, क्यों आई, तो कभी ये ख्याल आ जाता है एज ए ह्यूमन। अभी नहीं आता है, पर बहुत बार पहले आया था। तो फिर मुझे, और मैं ये सब, मेरा मॉर्निंग में ये सब कन्वर्सेशन चलता है मेरा अपने आप से, दैट मी टाइम में। तो फिर मुझे यही लगता है कि व्हाई आई एम हियर, क्यों हूँ मैं यहाँ पे। मैं तो जी रही थी, 3 बच्चे थे, अच्छी जिंदगी थी, सब लग्जरी थी, हस्बैंड अच्छा है, सब कुछ है। मैं क्यों यहाँ पे आई, क्यों मुझे भगवान ने भेजा? कुछ तो उनका पर्पस होगा, कोई तो रीजन होगा व्हाई आई एम हियर। क्यों उन्होंने मुझे ये रास्ता बताया? दुनिया में इतने सारी लेडीज है, इतने सारे लोग हैं, व्हाई मी, मुझे क्यों चूज किया? सो आई बिलीव दैट गॉड ने मुझे उनका एम्बेसडर बनाया है। सो आई एम टेकिंग इट एज अ प्रिविलेज और माई ग्रेटेस्ट लक और एनीथिंग यू कैन से। तो वो चीज मैं जब सोचती हूँ ना, तो मैं फटक से वापस खड़ी हो जाती कि नो, मुझे वो पर्पस सॉल्व करना है कि मुझे गॉड ने ये डायरेक्शन में क्यों डाला। नहीं तो ये एनलाइटमेंट, ये सेल्फ डेवलपमेंट सबको नहीं होता है ना। वो हम जहाँ पे है, यू आर ऑल्सो विद पूजा, जो हम लर्निंग हम सीख रहे हैं, जिस तरह से हम लाइफ को जानना सीख रहे हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं, एंड वी हैव चेंज्ड अ लॉट। मतलब मेरी तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई, मेरी सोच, मेरी लाइफ, मेरा सब कुछ चेंज हो गया, एंड एवरीथिंग इज पॉजिटिव, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। नाउ आई एम डीलिंग विद
एवरी सिचुएशन सो पॉजिटिवली। और एक मेरे चेंज होने से मेरे घर में इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, बच्चों में, हस्बैंड में, एवरीथिंग इज गोइंग सो पीसफुली। घर में एक मेरे अपने आप पे वर्क करने पे, मैंने किसी को बोला भी नहीं कि तुम ये करो या वो करो, बट एक मुझे देख के जो घर में चेंजेस आए ना, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। एक वो भी है, और वो भी आज ही मैंने सेल्फ लव का सेशन लिया था एंड आई टोल्ड दिस सेम थिंग। आपकी खुशी ना इज इक्वली प्रोपोर्शनेट टू योर फैमिलीज हैप्पीनेस। आप खुश रहोगे तो फैमिली खुश रहेगी। वो वाइब्स ही अपने आप सब बहुत सी चीजों को क्लियर कर देगा। तो वो भी है, और प्लस वो तो एक बात है ही है, दैट आई कैन नॉट मतलब इग्नोर नहीं कर सकती, जो चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस मेरे घर में आए हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, व्हाई आई एम हियर, क्यों हूं मैं, भगवान ने जरूर कोई वो मुझे स्पेसिफिक रीजन के लिए मुझे ये डायरेक्शन में डाला है जो मुझे अभी फुलफिल करना है। सो दैट मोटिवेट्स मी ऑल द टाइम। So your why is stronger. so much stronger. So I want to help as much as possible women, and I want to help so many orphan kids. I have very big plan for that, and to fulfill that I have to grow myself globally, not nationally, nahi, globally. So okay. May God give you the strength and wisdom to fulfill all your dreams and help people. So that motivates me all the time. So yeah, nowadays I'm not feeling like that, but no doubt on that initial stage, so many times I was thinking, अच्छी भली जी रही थी, क्या ये कर रही हो? But that time these all things were motivating me. And I love your reels. मतलब मुझे इतनी अच्छी लगती है ना रील्स। तो आप वो सारा ऐसे कंटेंट सोचते कैसे हो? या रील्स पहले तो मैं भी स्ट्रगल कर रही थी कि किस तरह से कंटेंट चूज करूं, क्या बनाऊं। फिर एक टारगेट ऑडियंस बराबर से समझ आ गया कि हाँ, मुझे सारी वुमेन से रिलेटेड, उनके प्रॉब्लम के रिलेटेड ही रील बनानी है। तो मैं कभी भी आइडिया आ जाता था, खाना बनाते बनाते, बाथरूम में, या किसी से बात करते करते। तो ऑलवेज आई एम कीपिंग माई सब नोटपैड विथ मी इन हाउस, और बाहर रहते तो मोबाइल रहते, तो मैं जो भी आइडिया आता है इमीडिएटली मैं लिख लेती हूँ आइडिया को। बाहर हूँ तो मोबाइल में लिख लेती हूँ, घर में हूँ तो वो नोटपैड पेपर बट लिख लेती हूँ। क्या होता है ना, ये सब आइडियाज आते हैं और हम भूल जाते हैं, चले जाते हैं। हाँ, तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पूरे वीक में कम से कम 15-20 नई चीजें मैंने सोच ली होती है, तो लिख लेती हूँ, फिर उसको ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, तो रील का कंटेंट मुझे मिल जाता है। और अपार्ट फ्रॉम इट, बहुत सारे जो अपने इन्फ्लुएंसर है, उनके रील्स को मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, तो उनकी रील्स देख के भी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड टॉपिक, आई कैन ऑल्सो यूज दिस टॉपिक फॉर माई रील। तो ऐसे भी मुझे बहुत आइडियाज मिल जाते हैं। तो और समहाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई टारगेट ऑडियंस ऑल द टाइम। सो you are my target audience, kind of, so you can relate very well with this thing. And yeah, I'm getting also so many DMs, so somewhere this is helping people. Okay, great. मतलब टारगेट ऑडियंस को ध्यान रखना चाहिए if you want to नहीं तो आप जनरलाइज भी रील कर सकते हो, बट अभी यहाँ पे अपना फोकस है कि हमें मोनेटाइजेशन भी करना है, तो बेहतर है कि हम अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से ही काम करें, तो हमें भी हेल्प करेगा। और बाकी तो अगर डीएम्स में, तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी डीएम आते हैं, तो उनको भी मैं आंसर दे देती हूँ। इनफैक्ट आज ही मेरा पहले का जो रिकॉर्डिंग था वो पूरा स्टूडेंट के साथ था। ओके। तो एनीवे वी आर हियर टू हेल्प पीपल, तो क्वेश्चन तो कोई भी पूछेगा तो वी विल हेल्प देम, बट जब मैं रील वगैरह बनाती हूँ तो स्पेसिफिकली मैं मेरे टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखती हूँ। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, लाइक एक ऐसा मैसेज क्या देना चाहोगे हाउसवाइफ को या वर्किंग वुमेन को, जिसको भी, कि वो अपने ड्रीम्स को दबा के ना रखे। रेगुलर रूटीन जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बस यही करो, घर को प्रायोरिटी दो, घर वालों को प्रायोरिटी दो, अपने लिए तो अपनी तो लीस्ट प्रायोरिटी होती है, वरना आप सेल्फिश कहलाओगे। So what is that one message you would like to give to all the women looking at us in this interview? Ki don't believe that, believe in yourself. Absolutely. Yeah, your question is so much relevant to, I think, 90% women in India, because मैं भी किसी जमाने में वही स्टेज में थी। लीस्ट प्रायोरिटी, अपने को तो सब चलता है, मतलब सबको देखो,
क्योंकि मम्मी ने भी वही सिखा के भेजा था कि अपने बारे में लास्ट में सोचना, पहले सबका घर में ध्यान रखना, इन लॉज का, हस्बैंड का, फिर बच्चे, तो वही काम सालों से करते आ रहे। तो मतलब वी आर इम्पोर्टेंट, वो कॉन्सेप्ट से ही हम लोग अनजान थे, ट्रस्ट मी। तो इसी तरह से मैंने अभी काम करते करते भी देखा है कि यू आर इम्पोर्टेंट और यू डिजर्व दैट ड्रीम लाइफ। वो कॉन्सेप्ट या वो अवेयरनेस ही नहीं है हम लेडीज में, और आती भी है तो हमें यही लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, लॉट्स ऑफ लिमिटिंग बिलीफ्स आर देयर कि नहीं हो पाएगा। इसी तरह से जिंदगी चल रही है और हम खुश है, सब कुछ मिल तो रहा है, हमें अभी क्या और करने की जरूरत है। इट इज लाइक दैट, यू नो, वी हैव एक्सेप्टेड ऑल दोस कॉम्प्रोमाइजेस हैप्पीली, मोस्ट ऑफ द केसेस अनफॉर्चुनेटली। तो बट यू नो, इफ समवेयर यू आर फीलिंग दैट पेन, क्योंकि बहुत सारी वुमेन है जो पेन में भी है, दे आर नॉट ऐसे हैप्पी नहीं है वो। तो अगर आप वो इमोशनल किसी ट्रॉमा में है या किसी पेन से गुजरे, तो उस समय पे तो आपको खड़ा होके अपने लिए लड़ना ही पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप दैट करेज। हाँ, अगर आप खुश है, आपको नहीं करना है काम, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। हर किसी का टारगेट काम करना होना ही चाहिए। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज देयर विश, उनको काम करना है, नहीं काम करना है, कोई बात नहीं। बट इफ यू आर गोइंग थ्रू सम पेन और सम पेनफुल सिचुएशन, दैट टाइम you have to raise your voice for yourself, and there are institute, there are life coaches, they can help you to come out from that pain. तो वहां पे आप अपने आप को इग्नोर मत करो, because you deserve that peace and love. उतना तो आप डिजर्व करते ही करते हो, दूसरी चीजों को आप सोचो ना सोचो। तो that's where you have to give priority to yourself. And if you really want to create your identity, if you really want to work and make that life you always desired, so for that also you have to ask for help. Because अगर आप 15-20 साल से हाउस वाइफ हो या 10 साल से हो, पहले काम करते होगे, तो भी वो 10 साल के बाद खड़े होना बहुत मुश्किल है। So that time you want someone who can direct you, who can give you that courage. और मे भी अगर आपने वो करेज डेवलप कर ली, तो उसको भी आपको मोटिवेट होके अपने लिए काम करना है, एंड द वर्क एंड लाइफ को भी बैलेंस करना ही है। क्योंकि जहां तक हम मैरिड है, हमारे बच्चे हैं, घर है, तो हमें वो बैलेंस या हार्मनी में तो लेके चलना ही पड़ता है। सो और फिर नहीं तो उसके सिवा काम करने का मतलब भी क्या है? अगर हम काम करते गए और पीछे घर में झगड़ा बढ़ता गया, या फिर हमारे बच्चे हम नहीं संभाल पाए, तो हमारा काम करने का मतलब ही नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू इफ यू आर अ मदर और इफ यू आर अ वाइफ, सो दैट इज योर पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट। और उस सक्सेस से वो सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा। एक नहीं मिलेगा, एक चीज नीचे हो गई तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलने नहीं वाला है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज मैनेजेबल। आप सब कुछ हार्मनी में ला सकते हो। बिगेस्ट थिंग, यू नीड टू कम्युनिकेट विथ योर ओन पीपल एंड दे विल अंडरस्टैंड। मे बी 2-3 महीना लगेगा उनको समझने में, बट आफ्टर दैट दे विल अंडरस्टैंड एंड थिंग्स कैन बी मैनेजेबल। सो raise your voice for yourself and stand up for yourself. That's all. I don't, अपने dreams और सपनों को दबा के मत रखिए, उनको भी खिलने दीजिए। That's all I want to say. So guys, this is a key takeaway. मत दबा के रहो अपने सपनों को, just bloom and do everything that is needed. Yes. And take inspiration from Sangeeta ma'am. You can any day contact her on her Insta handle. It is lifecoach_Sangeeta Chauhan. And my is anitagupta.official. And you can even comment below whatever query. I will put our handle in that description so that people can follow us. Yeah, and you can comment and ask any questions to ma'am or me. Whatever we can help. And I want to say that Anita is very good in mandala art. If particular mandala art, if you are fond of, please go to her. She is amazing. Thank you. It was nice talking with you. So many insight I got, and I really appreciate you. And you are really क्या बोलते हैं, practical example कि कैसे अपने लिए खड़ा होना है. Thank you so much, and it's my pleasure. And I like, I love to talk with you. It was great time with you. Same here. Thank you, ma'am, for inviting me to your channel. It's my great pleasure.